Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Veena Sethi, Associate Professor in Chemistry and my today's topic is acids, base and salts. इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि जो हमारी नेचर में जितने भी कंपाउंड्स हमारे पास हैं उनकी नेचर क्या है। या तो वो एसिडिक होगी या वो क्या होगी, बेसिक होगी। और जब ये एसिड्स और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, दे गिव सॉल्ट्स। सॉल्ट्स अगेन क्या करते हैं, वो एसिडिक नेचर के भी हो सकते हैं, बेसिक नेचर के भी। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो उसमें एसिड इन्वॉल्व हुआ इट वाज स्ट्रॉन्ग, और जो बेस इन्वॉल्व हुआ वेदर दैट बेस वाज स्ट्रॉन्ग। तो इन बोथ दीज केसेस वी विल फाइंड दैट salts which are formed on reaction between acids and bases, they are of 4 categories. When weak acid is involved with weak base, weak acid is involved with strong base, strong acid is involved with weak base, or strong acid and strong base. So this way we will study 4 types of salt and acids. No doubt, what are acids? One should know. Previously it was said the compound which is sour in taste. You might have tasted at your home like lemon, lime juice or apple juice, or you can say tamarind. All these are acidic in nature because they are sour in nature. These compounds have one more specialty in them, that they give hydrogen ion in aqueous solution. Means if we put these compounds in aqueous solution, then they liberate hydrogen ion or they donate hydrogen ion. We say proton donors. हम इनको प्रोटोन डोनर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट, कुछ इस टाइप के कंपाउंड होते हैं विच आर बिटर इन टेस्ट एंड दे आर सोपी इन टच, like our soap, like soda, like sodium hydroxide. These compounds are bitter and they have soapy touch. So they are hydroxyl ion donor. Why? Because when we put these compounds in water, they liberate hydroxyl ion, or we say them they are hydroxide ion डोनर्स। हम इनको हाइड्रोक्साइड आयन डोनर भी कहते हैं और हम इनको प्रोटोन डोनर भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि 2 टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। नेक्स्ट, ये जो एसिड्स हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होंगे, कंपाउंड्स जो कि पानी में जाते ही दे डिसोसिएट 100% एंड दे गिव 100% प्रोटॉन्स। जैसे अगर हम एग्जांपल लें HCl का, इसको हम पानी में डालते हैं, इट गेट डिसोसिएटेड 100% इन हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन। सो सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। लेकिन इसके अगेंस्ट कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे कि एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड है, इसको अगर हम पानी में डिसॉल्व करते हैं, दो नो डाउट इट गिव्स acetate ion and proton, but it dissociate less than 20%, less than 30%. So when compounds do not get dissolved or do not give hydrogen ion 100%, means in aqueous solution also they will found in this state, means associated form, not dissociated form. So these type of compounds will be considered under category of weak acids. Now similarly, bases are also divided into 2 categories, weak base and strong base. In weak base category, we will study only those compounds which do not get ionized 100%. Means they will ionize 100%, less than 100%, like ammonium hydroxide. If I dissolve ammonium hydroxide in water, though it will get dissociated into ammonium ion and hydroxide ion, but their dissociation will be less than 20%, 15%. Likewise, it depends on temperature also. So most of the quantity will remain like this, means undissociated form. While in case of strong base, suppose I have taken NaOH, because NaOH comes in this category. So NaOH, when we dissolve NaOH, sodium hydroxide,
in water, it get 100% ionized. Means 100% it will get dissociated, it will liberate sodium ion as well as hydroxide ions. So based upon their ionization, how much they get ionized or how much they get dissociated, they are categorized into strong base, weak base. Similarly, acids are categorized strong acid and weak acids. Other than this, we will study in this chapter indicators. Indicators are those indicators are compounds which indicates or their presence give us indication that the certain compounds, this one is acid and this one is basic. Means like in our day-to-day life, we see that there is red light, green light. Red light is the indication that now you have to stop. Likewise, in this acid-base chapter, we will see that there are certain compounds when we add these compounds in the mixture or in compounds, they tell us by changing their color that yes, this solution is acidic or this compound is acidic or this compound is basic or it is more basic or weak basic. Like these indicators, they are not other than compounds, they are compounds itself, but their presence give us indication or the nature of compounds by changing their color. They change their color. When we change the medium of the acid, they change their color. As we change the medium of solution, they will change automatically their color. So we will study something about indicators also in this chapter. This one is your first activity. You have taken hydrochloric acid, HCl from lab, or H2SO4. Means sulfuric acid, HNO3, nitric acid, acetic acid, CH3COH, sodium hydroxide, NaOH, calcium hydroxide, COH whole twice, potassium hydroxide, KOH, magnesium hydroxide, MgOH whole twice, and ammonium hydroxide, NH4OH. If I take all these compounds in different watch glass or in a china dish like this, you will see that there are some glassware in the lab. We call them china dish, and if it is made up of porcelain, and if it is made up of glass, then we call them watch glass. So I will take that many watch glasses and I will put small amount of all these compounds. And here I have 4 indicators. Indicators, I told you earlier that these are specific compounds. They change their color after changing medium. If you change the medium, it means if there is acidic medium, they will exist in another structure and they will have different color. But as you change the medium of the solution, they will change their form also, their structure also, and they will change their color also. So these type of specific compounds are called indicators, like red litmus, blue litmus solution, phenolphthalein and methyl orange. They will have 2 different color in acidic and basic medium. Red, what are litmus? Litmus is the mixture of certain dyes, 10-15 dyes, which is obtained from lichens, and these dyes are used either as a solution or adsorbed on filter paper. So in 2 ways we can use. And if we dissolve this litmus dye in acidic medium, then their color will be red. And if we dissolve in them basic medium, then their color will be blue. And both can be used as a indicator, because the litmus keeps its color red in acidic medium. So I have taken acidic dye or red litmus, means it is already in acidic medium. And if you are putting drop of red litmus solution in HCl, H2SO4, HNO3 and acetic acid, it will remain red because there is no change in medium. Previously it was red in acidic medium, now again it will be red. And if I change the medium, because these all are basic in nature, so the dye will change its color, it will turn red to blue. So you will find blue color of red litmus solution. Similarly, blue litmus. Blue litmus is already blue, it is dissolved in basic medium. And if you add drop of basic dye or blue dye in this solution, it will change color because medium is changing. It is coming from basic to acidic. But what about in basic medium? It will remain blue because there is no change in color. And what will happen?
If I take phenolphthalein and methyl orange, phenolphthalein is acidic, colorless in acidic. So you will see that colorless solution if you add in acidic solution, but it changes from colorless to pink color. So you will find pink color in basic medium. But in case of methyl orange, it is red in acidic medium. So you will find red color in acidic solutions and yellow in basic medium. So you will find basic color, yellow color in basic medium. So this way you can test that which compound is acidic and which compound is basic. So this was your fun activity also you can perform in your lab. Now we will see how metals react with acids and bases, or we can say how acids and bases react with metals. Reaction with metals, we see that all metals like sodium, potassium, calcium, zinc, they all react with acids and they liberate hydrogen gas. In my first chapter, I discussed that there is a chemical series, and in this series, whosoever or whatsoever elements are above hydrogen. This is the series: lithium, sodium, potassium, calcium, magnesium, aluminum, zinc, iron, tin, lead, hydrogen. Then copper, mercury, silver and gold. The metals placed above in the series, they can displace hydrogen from the acid solution, because hydrogen not only hydrogen, suppose this sodium can displace potassium, or magnesium can displace aluminum, zinc can displace copper can displace silver. Any metal above in the series can displace the lower one. So in this series, hydrogen is in the middle of the series and it can be displaced by that many metals. So I can write sodium on reaction with HCl give sodium chloride, potassium give potassium chloride, calcium on reaction with H2SO4, not only with hydrochloric acid, it may be a nitric acid, it may be sulfuric acid. तो ये सभी के सभी मेटल्स जो हैं एसिड से रिएक्शन करके क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं. लेकिन हमें यहाँ ये ध्यान देना है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट विल डिपेंड ऑन द रिएक्टिविटी डिफरेंस. कि जैसे अब हम बात करें आयन की, तो आयन उतनी जल्दी से HCl से रिएक्शन नहीं करेगा जितनी क्विकली कौन करता है, पोटेशियम या सोडियम. तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जो रिएक्टिविटी की जो रेट है दैट मे बी डिफरेंट बट दे ऑल रिएक्ट. लेकिन जो जैसे हमने एक एक्टिविटी अगर हम करें कि हम एक फ्लास्क में जिंक के ग्रेन्यूल्स ले लें, ये मैंने जिंक के ग्रेन्यूल्स लिए और इसमें कॉर्क लगा के मैंने क्या किया, H2SO4 या HCl कोई सा भी एसिड मैंने इसमें ऐड किया, और यहां से डिलीवरी ट्यूब से जो गैस निकली उसको मैं सोप सॉल्यूशन के थ्रू क्या करूं, यहां मैं सोप सॉल्यूशन भर दूंगी, आई विल फिल. और अब इसके ऊपर अगर मैं गैस जार इन्वर्टेड रख दूं तो मैं क्या देखती हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस विल बी कलेक्टेड. और अगर इसकी जगह मैं क्या करूं, इस डिलीवरी ट्यूब को ऊपर लाके कैंडल से, ये मैंने कैंडल बनाई, कैंडल की फ्लेम से इसे टच करूं तो आई सी कि जो हाइड्रोजन गैस है इट बर्न्स विद पॉप अप साउंड, नॉट विद कंटिन्यूअस फ्लेम. कि जो कंटिन्यूअस फ्लेम होती है वो कंटिन्यूअस जलती ही रहती है, लेकिन जो पॉपअप साउंड के साथ होती है वो कैसे जलती है, एक बार जलेगी पॉप, फिर बुझ जाएगी, फिर दोबारा जलेगी, फिर बुझ जाएगी. इस तरह से पॉपअप साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस जलती है, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन गैस. तो हम क्या देखते हैं कि सभी के सभी एसिड्स मेटल से रिएक्शन करके क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस. इसके अदर देन दिस हम क्या देखते हैं, जो मेटल्स हैं वो बेस से भी रिएक्शन करके क्या देते हैं, सॉल्ट, और साथ में देते हैं हाइड्रोजन गैस. तो ये मैंने जब सोडियम की रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जिंक से कराई तो मुझे क्या मिला, सोडियम जिंकेट. दिस सॉल्ट इज कॉल्ड सोडियम जिंकेट. तो सोडियम जिंकेट और साथ में हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन. तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स दैट दे रिएक्ट विद एसिड्स एंड बेसिस एंड दे लिबरेट हाइड्रोजन गैस. नाउ वी सी द रिएक्शंस ऑफ मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स विद एसिड्स.
तो हम क्या देखते हैं कि अगर हमने HCl लिया या H2SO4 कोई सा भी एसिड हम ले, उसकी रिएक्शन अगर हम बाइकार्बोनेट से कराएं या फिर हम सोडियम कार्बोनेट से कराएं, तो रिएक्शन विल रिमेन सेम. ओनली थिंग इज दैट देयर विल बी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्म में बी डिफरेंट. तो अगर मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से कराई, तो हमें क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर. तो ये जो रिएक्शन है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही इवॉल्व हो रही है. इसको हम कैसे प्रूव करते हैं कि हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें HCl एसिड या कोई H2SO4 एसिड हमने नीचे ले लिया. नाउ वी ऐड इधर सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट. तो हम इसमें एक साइड से सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट ऐड करते हैं, तो दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस NaCl. NaCl तो है इसी टेस्ट ट्यूब में, लेफ्ट आउट रह जाएगा. लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है बीइंग गैस, तो क्या होगा, ये ऊपर की तरफ इवॉल्व होगी और इसको हम डिलीवरी ट्यूब से क्या करते हैं, बाहर कलेक्ट करते हैं. तो अब हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि वेदर दिस गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस और नॉट. हम इस गैस को किस में पास करते हैं, लाइम वाटर सॉल्यूशन में. तो जब हम लाइम वाटर सॉल्यूशन में पास करते हैं, तो व्हाट इज आवर ऑब्जर्वेशन कि इन द बिगिनिंग लाइम वाटर इज कलरलेस, बट एज वी पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू लाइम वाटर, इट टर्न्स मिल्की. Why it turns milky? Because calcium hydroxide means lime water reacts with carbon dioxide and gives calcium carbonate, and this calcium carbonate is insoluble in water. That's why this calcium lime water turns milky, because of presence of calcium carbonate which is insoluble. You have to mention that this compound is insoluble, that is why lime water turns milky. Now if we pass more hydrogen, means once this solution get milky, again you are passing more and more carbon dioxide gas through this milky solution, then again on reaction with carbon dioxide and water, this calcium carbonate gives calcium bicarbonate, and calcium bicarbonate or calcium hydrogen carbonate is soluble in water. Because this compound form is soluble in water, that's why this lime water which was earlier milky, now it turns colorless. तो ये क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है. तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि जो एसिड्स हैं वो मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करके हमें क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. एंड वी सी दैट calcium carbonate occurs in nature in 3 different forms. First, chalk you might have seen on blackboard, teachers write with chalk only. And second, marble, you might have seen flooring of different houses that it is done by marble. So marble again is calcium carbonate, and third one is limestone. So all these are forms of calcium carbonate. Now I am going to perform one activity for you. This is a test tube and I have taken hydrochloric acid in it, and I have added few drops of phenolphthalein. Few drops of phenolphthalein, I can write phenolphthalein as a HPH, or you can write full form of phenolphthalein. So when I will add phenolphthalein, because phenolphthalein is an indicator, so it has colorless. Color means it has no color in acidic medium. So what will happen? You will find colorless solution, because in this solution there are hydrogen ions in excess. But now I start adding NaOH solution, और जैसे ही मैं NaOH का solution add करती हूँ इसमें, तो what will happen कि NaOH के जो OH ions हैं, they will react with hydrogen ions and they will form NaCl plus H2O, because Cl ion will react with Na. So you will get H2O. Slowly सारे हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो कंज्यूम हो जाएंगे, और एक स्टेज ऐसी आएगी जब वो बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे, बिल्कुल जीरो पे आ जाएंगे. अब क्या होगा, अगर आप अभी भी कंटिन्यू रखते हैं NaOH को ऐड करना, तो नाउ दिस सॉल्यूशन विल हैव excess of OH ions because H ions are over now.
तो अब OH आयंस की प्रेजेंस में फिनोफ्थलीन कैसा कलर रखती है? पिंक कलर रखती है। तो यू विल सी पिंक कलर इन द सॉल्यूशन। और अगर मैं दोबारा से इसमें थोड़ा सा HCl ऐड कर दूं, देन अब H आयन एक्सेस में हो जाएंगे, तो ये पिंक कलर से क्या हो जाएगा? कलरलेस। और फिर अगर मैं NaOH ऐड कर दूं एज मेनी टाइम्स आई वांट, कि भाई 10 बार मैं NaOH ऐड करूं और 10 टाइम्स मैं HCl ऐड करूं, तो अगेन एंड अगेन ऑन एडिंग HCl इट विल टर्न कलरलेस, और NaOH ऐड करने के बाद इट विल टर्न टू पिंक कलर। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि जो फिनोफ्थलीन है वो एसिडिक और बेसिक मीडियम में अलग अलग कलर तो रखता ही है, लेकिन एसिड और बेस में जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। कि Na आयंस तो जो है वो पहले भी थे NaOH के पास, और जब हम इसमें HCl एक्सेस में डाल देंगे तब भी रहेंगे, या HCl के पास क्लोराइड आयन पहले भी थे और जब NaOH आयन एक्सेस में हो जाते हैं तब भी क्लोराइड आयन है, लेकिन रिएक्शन किसके बीच में हो रही है? हाइड्रोजन आयन एंड OH आयन के बीच में। तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सेम एक्टिविटी आई कैन परफॉर्म इन अनदर वे ऑल्सो, कि मैं सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब में पहले कौन सा सॉल्यूशन ले लूं? NaOH। इफ आई हैव टेकन NaOH इन द बिगनिंग, तो फिनोफ्थलीन का कलर जो है इस सॉल्यूशन में अल्कलाइन मीडियम में कैसा होगा? पिंक कलर। और नाउ आई एड HCl कंटिन्यूअसली, तो धीरे धीरे जब HCl इसके बीच में आएगा तो H आयन विल रिएक्ट विद OH आयंस and sodium ions will react with chloride ions, and you will get NaCl plus H2O, and the reaction between H and OH is producing water, and this is called neutralization reaction. तो यहाँ पे चाहे हम पहले NaOH लें चाहे हम पहले HCl लें, रिएक्शन कौन सी होगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होगी। तो अब इसका पहले पिंक कलर था, और एक स्टेज ऐसी आएगी जब सारे OH आयंस कंज्यूम हो जाएंगे हाइड्रोजन आयंस के साथ, दे विल रिएक्ट, तो अब हाइड्रोजन आयन एक्सेस में हो जाएंगे और जो पिंक कलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। और अब दोबारा से मैं 2-3 ड्रॉप्स किसकी डालूं? NaOH की, तो अब एक्सेस में क्या आ जाएंगे? जो थोड़े से HCl के H आयन बचे थे अब वो OH आयन से रिएक्शन कर लेंगे, अब एक्सेस में OH आयन हो जाएंगे, तो अगेन इट विल टर्न टू पिंक कलर। फिर मैं दोबारा HCl डाल दूं तो OH आयन फिनिश हो जाएंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस एक्टिविटी को एन टाइम कर सकते हैं। और ये रिएक्शन जो एसिड एंड बेस की होती है क्या कहलाती है? एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। These are the different examples of acid-base reaction. Hydrochloric acid on reaction with sodium hydroxide gives salt and water. Similarly, acetic acid on reaction with sodium hydroxide gives sodium acetate and water. Hydrochloric acid on reaction with ammonium hydroxide give ammonium chloride and water. And acetic acid on reaction with ammonium hydroxide give ammonium acetate and gives water. In this reaction you will find that this is a strong acid and this is a strong base. तो strong acid strong base से रिएक्शन करता है, तब भी हमें salt और water मिलता है, और अगर weak acid strong base से रिएक्शन करे तो भी हमें salt और क्या मिलता है? water. Similarly, strong acid can react with weak base and it gives salt plus water, and weak acid on reaction with weak base it also gives salt plus water, but the nature of salt will be different. Means चाहे कोई सा भी एसिड किसी भी बेस से रिएक्शन करे ऑलवेज इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। ये जो सॉल्ट्स बने ये सॉल्ट्स की नेचर क्या होगी? वेदर इट विल बी एसिडिक और इट विल बी बेसिक, इट डिपेंड्स कि वो कौन से एसिड से बना है। अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है तो वो एसिडिक, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस से बना है तो बेसिक, और अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे एंड सॉल्ट विल बी न्यूट्रल, और अगर दोनों ही वीक है तो भी दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और सॉल्ट क्या होगा? न्यूट्रल। लेकिन इन दोनों केसेस में जहां एक स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग है सॉल्ट का नेचर भी वही नेचर होता है। दिस इज न्यू एक्टिविटी फॉर यू दैट I have taken copper oxide Cu2O in a beaker and I am adding HCl means hydrochloric acid to it.
व्हाट आई सी दैट इट टर्न्स ब्लू ग्रीन, कि आपको जो यहाँ सॉल्यूशन मिलता है वो कैसा मिलता है, ब्लू ग्रीन। वाई, इसके बीच में क्या रिएक्शन हो रही है, तो ये देखो कॉपर ऑक्साइड in presence of hydrochloric acid or on reaction with hydrochloric acid it gives copper chloride and water। तो अब यहाँ आप देख रहे हो कि ये क्या है, कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड इज ए सॉल्ट, और वाटर, ये वाटर है ही, और ये आपका एसिड। तो इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, किस टाइप की रिएक्शन है, ये भी एक तरह की क्या है, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। इट मीन्स जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं, मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, दे बिहेव लाइक बेस, लाइक ए बेस। तो अब उसमें क्या होगा कि ये जो बेस है वो एसिड से रिएक्शन करके यू कैन सी दैट इट इज गिविंग सॉल्ट एंड वाटर। सिमिलरली मैंने क्या किया, लाइम वाटर लिया, और लाइम वाटर में ऊपर से मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर में पास की, देन क्या होता है, आप देखते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑन रिएक्शन विद लाइम वाटर इट गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एक सॉल्ट, और ये वाटर, ये आपको पता है जिसमें OH है तो वो बेस है। अब इसका मतलब ये क्या है, ये एसिड है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये रिएक्शन भी क्या है, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर वाली रिएक्शन है, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन वाली रिएक्शन है। अब हम इसको आइडेंटिफाई और कैटेगराइज कैसे करते हैं, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड एक मेटेलिक ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड है, और जबकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन का ऑक्साइड मीन्स नॉन मेटल का ऑक्साइड। तो वी कैन जनरलाइज दैट ऑल मेटेलिक ऑक्साइड्स, जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं दे आर इक्वलेंट टू बेस, कि वो एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर देते हैं, और जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, मैंने सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड लिया है, आप कार्बन डाइऑक्साइड की जगह सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड या कोई सा भी आप नॉन मेटल का ऑक्साइड काम में ले सकते हैं। तो ऑल नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर इक्वलेंट टू एसिड्स, वो क्या है, एसिड्स की तरह बिहेव करते हैं, एंड ऑन रिएक्शन विद बेस दे गिव सॉल्ट एंड वाटर। Now we will see what is common in all acids and what is common in all bases. First of all, I have taken one beaker and I have added some water in it. और वाटर डालने से पहले मैंने कॉर्क के अंदर दो नेल्स ऐसे इन्वर्टेड नीचे से ऊपर की तरफ लगा के और दोनों नेल्स को कनेक्ट किया है बैटरी से, बैटरी को कनेक्ट किया बल्ब से, और इधर हमने इसका सर्किट कंप्लीट किया है। तो हम क्या देखते हैं कि जब हम इसमें एसिड ऐड करते हैं, थोड़ी सी हमने ड्रॉप्स HCl की या H2SO4 की ऐड की, तो हम क्या देखते हैं, तुरंत जो है बल्ब ग्लो करने लगता है और करंट पास होता है। लेकिन अगर मैं इसी एक्सपेरिमेंट को क्या करूं, वाटर में HCl और H2SO4 ना डालकर या कोई और एसिड की जगह मैं ग्लूकोज डाल दूं, या मैं क्या डालूं, इथाइल अल्कोहल डालती हूं, तो मैं क्या देखती हूं कि ये बल्ब ग्लो नहीं करता। इट मीन्स कि जो ऑल एसिड्स हैं वो आयनिक इन नेचर हैं, और वो क्या रखते हैं, H+ आयन रखते हैं अपने पास, और इसीलिए कंडक्शन होता है करंट का, करंट इधर से इधर फ्लो करती है, और आपको क्या मिलता है, जब करंट फ्लो होती है तो बल्ब ग्लो करता है। इट मीन्स ऑल एसिड्स हैव H आयंस कॉमन, लेकिन क्योंकि ग्लूकोज और अल्कोहल दे कांट लिबरेट H आयंस, इसीलिए इस केस में आपका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करता। अगर मैं सेम एक्सपेरिमेंट को NaOH या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ परफॉर्म करती हूँ, तो मैं क्या देखती हूँ, OH आयन दोनों में ही है, तो यहाँ पे भी करंट का क्या होगा, फ्लो होगा, और यू विल ऑब्जर्व कि बल्ब इज ग्लोइंग। तो इट मीन्स ऑल एसिड्स हैव कॉमन व्हाट, हाइड्रोजन आयंस, एंड ऑल बेसिस हैव कॉमन व्हाट, OH आयंस। अब इनको पानी में डालने से क्या होता है कि ये करंट का फ्लो करते हैं। अगर हम वाटर में ऐड ना करें तो क्या ये बिना वाटर में ऐड किए भी करंट का फ्लो कर सकते हैं या हाइड्रोजन आयन दे सकते हैं? सो फॉर दिस वी हैव टू परफॉर्म वन मोर एक्टिविटी।
Just to check the role of water in acid and bases, I am performing this new activity. I have taken sodium chloride in the test tube and I am adding hydrogen sulfuric acid, means sulfuric acid in it. After reaction with this sodium chloride, it liberates a gas, and gas is HCl. So now I will perform my activity. I will bring one dry litmus paper which is blue in color. Now I will observe the change in color. Secondly, I will bring moist litmus paper blue in color. अब मैं दो एक्सपेरिमेंट करने जा रही हूँ. एक बार मैं ड्राई लिटमस पेपर जो ब्लू इन कलर है इसके माउथ के पास लेके आऊंगी और दूसरी बार मॉइस्ट को लेके आऊंगी जो ऑलरेडी वाटर से थोड़ा सा गीला है. अब मैं क्या देखती हूँ कि जो ड्राई लिटमस पेपर है ब्लू, इट रिमेन्स ब्लू, इसका कलर चेंज नहीं होता. लेकिन जो मॉइस्ट था वो ब्लू से क्या हो जाता है, रेड हो जाता है. तो व्हाट हैपेंड विद वाटर? वाटर ने क्या किया कि ये जो HCl था ये हालांकि अपने पास H प्लस और Cl माइनस इसके अंदर ही है, लेकिन ये इसको लिबरेट नहीं करता. तो जब आप ड्राई लेके आते हो पेपर तो ये जो HCl गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, ये उससे रिएक्शन नहीं करती लिटमस पेपर से. लेकिन जब आप HCl को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ये क्या देता है, H प्लस और Cl नेगेटिव. ये H प्लस क्योंकि अकेला नहीं रह सकता, प्रोटॉन कभी भी अकेला नहीं रहता. इट रिएक्ट्स विद वाटर एंड इट गिव्स H3O पॉजिटिव आयन. बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस आयन ओनली जो ब्लू कलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में. और जब ये ड्राई था तो ये H प्लस या H3O पॉजिटिव नहीं था, इसीलिए इसका कलर चेंज नहीं होता. इसी की जगह अगर मैं H2SO4 या HNO3 भी देखूं तो जब वो ड्राई स्टेट में है, यानी कि उनमें मैंने वाटर ऐड नहीं किया, अब वो कलर चेंज नहीं करते और वाटर ऐड करने के बाद ही क्या होता है, H3O पॉजिटिव आयन हमें मिलता है और कलर चेंज होता है. मीन्स वाटर इज एसेंशियल. नेक्स्ट अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या कोई भी बेस लूं, NaOH, अगर ये ड्राई है और इसके पास मैं रेड लिटमस पेपर लेके आऊं तो वो ब्लू कलर का नहीं होगा. लेकिन अगर मैं इसे वाटर में डिसॉल्व करती हूँ, ओनली देन इट गिव्स सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन. सिमिलरली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, आपको कैल्शियम +2 और हाइड्रोक्साइड आयन देगा. तो देर आर मेनी बेसिस, मतलब सारे बेसिस के पास OH आयन तो होता है, लेकिन जो बेस वाटर सॉल्युबल है ओनली दोज बेसिस कैन गिव OH आयन और उनको हम क्या कहते हैं, एल्कली. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्कली एंड बेस? बेस any compound which has OH ion. Alkali, when base is soluble in water and can liberate hydroxide ion, then it's called alkali. तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जितने भी एसिड्स हैं वो पानी में डिसॉल्व होने के बाद ही क्या करते हैं, आपको हाइड्रोजन आयन H3O पॉजिटिव देते हैं और एल्कली क्या करते हैं, OH आयन देते हैं. और अगर हम इसमें वाटर कंटिन्यूअसली ऐड करते जाएं तो क्या होता है. सपोज मैंने क्या किया, एक बीकर लिया और इसमें 10 ml ऑलरेडी वाटर ले लिया. अब 10 ml वाटर लेके मैंने इसमें HCl या H2SO4 ऐड किया थोड़ा सा, और बिल्कुल केयरफुली ऐड करना है. तो हम इसको अगर हम बॉटम से टच करके देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, ये गर्म, हल्का सा हॉट वी फील. और अगर मैं इसकी जगह क्या डालती हूँ, NaOH ऐड करती हूँ या KOH, यानी कि ये ऐड नहीं किया पानी में, मैंने NaOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया और फिर मैंने इसके बॉटम को टच किया तो स्टिल आई फील वार्म. व्हाई? क्योंकि जब ये पानी में आते हैं आयंस तो ये H प्लस आयन क्या करेगा, वाटर से रिएक्शन करके H3O पॉजिटिव देगा और इस बॉन्डिंग से, इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है, इससे एनर्जी रिलीज होती है
और वो जो एनर्जी रिलीज होती है उससे ये पानी जो वाटर है वो गर्म हो जाता है और यू फील लिटिल हॉट। और अगर आप इसको लगातार ऐड करते जाते हैं तो ये और ज्यादा गर्म होता जाता है। और अगर हम एसिड में वाटर ऐड करें तो क्या होता है कि हमने यहाँ एसिड ले लिया पहले से ही और ऊपर से हमने क्या किया, वाटर ऐड किया। हालांकि इट इज नॉट एडवाइजेबल कि आप एसिड में वाटर ऐड करें। वाई? क्योंकि जब आपने वाटर में एसिड ऐड किया था तो यू हैव टेकन एटलीस्ट 10 ml वाटर सपोज। तो 10 ml वाटर में जैसे ही 1 ml 2 ml आप एसिड ऐड करोगे तो जो हीट निकलेगी, जब ये बॉन्डिंग होगी और जो हीट बाहर निकलेगी दैट विल बी कंज्यूम्ड बाय 10 ml ऑफ वाटर। और अगर आपने 100 ले रखा है तो 100 ml ऑफ वाटर से कंज्यूम हो जाएगी और इसका टेम्परेचर धीरे धीरे राइज करता है। तो स्प्लैश होने के चांस या एकदम से उछलने के चांस नहीं होते, एक्सीडेंट नहीं होता। अगर आपने एसिड पहले से ले लिया तो नेचुरली आप एसिड को डाइल्यूट कर रहे हो, तो एसिड आप कम लोगे। जब आपने एसिड कम लिया, ऊपर से आपने वाटर ऐड किया तो तुरंत बहुत सारी हीट बाहर निकलती है, डाइल्यूशन हीट। और वो हीट से क्या होता है कि इतना ज्यादा गर्म हो जाता है सॉल्यूशन कि वो बॉईल होके एकदम से उछलता है। और उछलने के साथ क्या होता है, आपके फेस पे या हाथों पे आ सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो नेवर ऐड वाटर इनटू एसिड, ऑलवेज ऐड एसिड इनटू वाटर। समटाइम ये इतना गर्म हो जाता है कि अगर आपने ये अच्छी क्वालिटी का बीकर नहीं ले रखा या फ्लास्क नहीं ले रखा तो ये ब्लास्ट भी हो जाता है, ये एकदम से क्रैक होकर टूट भी जाता है और ये उछलता है चारों तरफ। तो लैब में काम करते समय हमें ये ध्यान देना है कि कभी भी एसिड, वाटर को एसिड में ऐड नहीं करते। एसिड को हम किस में करते हैं, ऐड वाटर में ऐड करते हैं। दिस इज द समरी ऑफ लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। ऑल एसिड्स ऑन रिएक्शन विद बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। और इसको आप ये भी कह सकते हो कि हाइड्रोजन आयन ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्साइड आयन गिव वाटर। दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड्स और बेस on reaction with metal they give salt or and hydrogen gas, and acid on reaction with metal oxide gives salt and water, whereas bases on reaction with non-metal oxide give salt and hydrogen oxide. It means metal oxides are acting like base and non-metal oxides are acting like acids. और एसिड जो हैं वो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन से क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। और एसिड्स जो है वो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद ही हाइड्रोजन आयन देते हैं और बेसिस भी वाटर में डिसॉल्व होने के बाद ही हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्चुअल क्या है, हाइड्रोजन आयन ऑन रिएक्शन विद OH आयन गिव्स वाटर। तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया, आपको टॉपिक समझ में आया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अपने जो क्वेरीज हैं उनको मेरे कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए सो दैट आई कैन सॉल्व योर क्वेरीज ऑल्सो। थैंक यू।